दुश्मन, समाज, किस्मत, सब लोगों ने कोशिश करी इनको तोड़ने की, लेकिन ये नहीं टूटे। कौन है ये लोग? किस मिट्टी के बने हुए हैं? हिंदुस्तान समझता है कि जंग खत्म हो गई, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज तक जंग लड़ते चले जा रहे हैं। आई एम मेजर गौरव आर्या and I am at the Paraplegic Rehabilitation Center here in Pune. This is the home of the Unbreakables. The Paraplegic Rehabilitation Center is a boon for serving soldiers and those who are injured in active duty from the Army, Navy and the Air Force. And this entire structure around which the PRC revolves is in control of one man. Today we are going to speak to Colonel Mukherjee, who's the medical director of the Paraplegic Rehabilitation Center, and he will tell us how it started, what is the concept of the PRC, and how does it help soldiers to literally and metaphorically stand again on their 2 feet. Welcome to Patriot, sir. Thanks, thank you very much. So we wanted to ask you about this PRC. And how did it start? How did the idea of PRC come into being? All these people who are in PRC, what sort of guys they are with us. So that is, we have to understand that first. So all these personnel from the defense services who are here with PRC, they all have sustained spinal cord injury, which has led to either paraplegia or to quadriplegia. Okay. And let me tell you what paraplegia and quadriplegia means is, see, in paraplegia you have got loss of power and sensation in both the lower limbs. And in quadriplegia, you have got loss of power and sensation in all 4 limbs. So all besides the 4 limbs... all 4 limbs are gone. And besides this, in both, they have got loss of bladder, bowel and sexual control. So that is very important. And that is the reason, because of these disabilities, these people are prone to more complications and everything. So, like bed sores, maybe urinary tract infections, maybe respiratory tract infections. So that's why these people, they require extended rehabilitation, more care, so throughout their life. So that's why, that's the concept from where it starts basically. All right. Fine. So in armed forces, what happens, once they get injured, after the injury, we have got medical, facilities everywhere. As you save their life, you diagnose the cases, then they are treated in the hospitals. Whatever, improvements has taken place, we see whether these people will be able to continue in the armed forces or not. If they are able to continue in the armed forces, then they are kept in low medical category by giving certain sedentary jobs. Yes. And the remaining people, they are either invalidated out or boarded out. So taking you back to history a little bit, how did it start? That's what I'm going to tell you, how it started. Yes. So now, this is what happens. So now in the year 1971, when there was the Indo-Pak war, so that was the time when we had a lot of, these spinal cord injury patients. So when these guys, they reach the final stage, say after 2 years, in the year 73, when they reach the final stage, and then they were about to be invalidated or boarded out. So that was the time when it came to the mind, because these boys, they themselves said, "Ki now we are okay, fine, but we don't have good financial background, we don't have, family background, and we belong to all remote places. So that's why we don't have any facilities of hospitals and everything. So now where do we go?" So that was the time when this thing came. Okay, we must have such an institution wherein these people, these national heroes, the war heroes, whatever people, they should not be thrown like that. So there should be a center wherein these people should be looked after. So there was an acceptance from the Army, Navy and Air Force. Exactly. That, they are still part of us, Yeah. irrespective of the injuries. Exactly. And we are responsible for them, and Yeah. we should take care of them forever. Exactly. But now, since they were all ex-servicemen, Yes. so the Army said, okay, we cannot have an organization like that. So that's why this particular thing is working like an NGO. Okay. Registered NGO under the Bombay. So this is a Public registered Trust. NGO. Exactly. All right. And the foundation stone was laid by General Babur. The Southern Army commander at that time. In the year 1973, and it was formally inaugurated on 20th of September 1974 by Shri Fakhruddin Ali Ahmed, the then President of India. President of India. Exactly. And after which I'm told that Sir General Babur went on to become Chief of Army Staff. Exactly. He went to Delhi, and before going to Delhi, he did this. Yeah, exactly. Excellent, sir, excellent. PRC is a gold mine. There is so much of talent here. Every turn that you take along these long corridors, you see somebody doing some fantastic stuff. Somebody's playing games, somebody's singing, somebody's playing the mouth organ, some instrument.
somebody is making something, and we'll come to much more of that later. And somebody is painting. You know, PRC has its own Michelangelo. कैसे हैं आप दोस्त? बहुत बढ़िया सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर XLSC मृदुल घोष है। अच्छा, मृदुल घोष सर। तो भाई आप एयरफोर्स के हैं? यस सर, मैं एयरफोर्स का हूँ सर। अच्छा, तो आप कब से हैं PRC में? PRC में पिछले 3 साल से हूँ सर। अच्छा, आपका जो एक्सीडेंट हुआ था कहाँ पे हुआ था? मेरा एक्सीडेंट सर सहारनपुर में हुआ था, मेरा मतलब एयरबेस के नज़दीक में हुआ था। ओके, कैसे हो गया, क्या हो गया? मैं सर छुट्टी काट के यूनिट रिटर्न हो रहा था। हाँ। तो मेरा जो एयरबेस था वो मेन सिटी से बाहर 12 किलोमीटर आउटर एरिया में था। हाँ। तो मैं रात को 9 बजे ट्रेन से उतर के ऑटो लेके जा रहा था। अच्छा अच्छा। तो नेशनल हाईवे 4 था जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है। हाँ। तो उस रास्ते में मेरा यूनिट पड़ता है, एयरबेस पड़ता है। तो मैं जा रहा था ऑटो लेके, तो मेरे ऑटो को एक स्पीडिंग ट्रक ने हिट कर दिया था पीछे से। तो ट्रक तो मेरा ऑटो पलटी हो गया था, उससे मेरा नेक ब्रेक हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, सर्वाइकल 5-6 फ्रैक्चर डिसलोकेशन। ओके, मैं दोस्त आपका ये देख रहा हूँ, आप पेंटिंग बना रहे हैं। यस सर, ये माउथ पेंटिंग है सर। ये माउथ पेंटिंग है, आप Yes, मुंह से अपने पेंट करते हैं? यस सर। और एक पेंटिंग को बनाने में कितना टाइम लग जाता है? सर एक पेंटिंग साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो मिनिमम तो 3 to 4 डेज लगते ही हैं। एक पेंटिंग में लग जाते हैं ना 3 to 4 डेज? यस सर। और आप कमाल की पेंटिंग करते हैं, थोड़ा सा हमें दिखाएंगे करने हाँ, क्यों नहीं करके? सर। सर। आइए, ये आपका ब्रश है? यस सर। थैंक यू। There are so many shades here. It's white, light pink, dark pink, light red, red. He was such fantastic control over the brush. Now he's putting blood red and white. You know, आप मतलब I'm so impressed. मतलब ये तो कमाल हो गया बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपने बनाया, बहुत ही खूबसूरत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। And you know, viewers, this is not just a painting. This is the heart of a soldier. This is the spirit of a soldier. You know, that never say die spirit. They will do something or the other. Nobody is going to sit back and say that, okay, life has dealt me a bad hand. Never. That is not what soldiers do. Soldiers get up and they fight and they keep on fighting. And this is what my young friend here is doing. He's fighting. He's making this beautiful painting. Thank you very much. Thank you, sir. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Thank you, sir. Right? जय हिंद. थैंक सर। I'm standing in these corridors of the PRC, and at every turn of the corridor, there is a story, there is a legend, and it was my absolute honor to meet a legend, a true blue soldier in the old traditional sense. And today, I would like to introduce you to that soldier. साहब, पेट्रियट में आपका स्वागत है। साहब, आपसे मिलके पहला तो ये कहना चाहता हूँ कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू। साहब, आप जरा बताइए अपने बारे में, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो प्लीज आप बताइए। सर, जय हिंद। नाइट सूबेदार भोपाल सिंह चौधरी मेरा नाम है। 5 राजरेप से हूँ। 22 साल देश की सेवा की, 3 युद्ध लड़े, 40 साल हो गया व्हील चेयर में बैठे। गर्दन से नीचे पूरा डेड है, लेकिन कलेजा 2.5 किलो का है। इंडियन आर्मी का जवान और राजस्थानी ऊंट कभी बुढ़ा नहीं होता। हम कल भी बूढ़े नहीं थे, आज भी नहीं है। जवान आए और जवानी जाएंगे। लड़ेंगे आज़ादी वतन के लिए जब तक जान तन में है। अरे जिएंगे तो आज़ाद होकर, वरना गुलाम जी कर भी क्या करेंगे। साहब, आप एक बात बताइए, आपको आपने देखिए 62 की जंग लड़ी, आपने 65 की जंग लड़ी, आपने 71 की जंग लड़ी। आपके 62 की जो चाइना के साथ लड़ाई थी, उसकी कुछ यादें हैं आपकी? सर, ताज़ा एकदम, ऐसे दिल में हमेशा सोच के सोते हैं। चाइना आज भी आ जाए, हम कच्चा सब आ जाए, हमारे दिल में ये है कि होना चाहिए एक झटका, जिससे हमारा बदला तो निकाल लें हम। उस टाइम पर हमारा सप्लाई बिल्कुल पीछे से नहीं आता था, और कोई भी हथियार 303 राइफल थी, उनके पास ऑटोमेटिक थी, लेकिन हम 303 से भी मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन रास्ता बर्फ, चारों तरफ से रास्ता मालूम नहीं था, बर्फ नहीं था, बर्फ का हालत खराब था। जवानों की हालत थोड़ी खराब होने की वजह से सप्लाई नहीं मिलता था राशन का। हमारा ब्रिगेडियर होशियार सिंह को, बहादुर योद्धा था, उसको हुक्म मिला था विड्रॉ करो। वो बोलो मैं मर जाऊंगा देश के लिए,
भारत माँ के लिए, लेकिन मैं कभी विड्रॉ नहीं करूँगा। मैं भी ये चाहता हूँ, हमेशा दिल में सोता हूँ शाम को, मेरे को दर्द होता है कलेजे के अंदर कि चाइना आए तो आज भी मैं खाने के लिए तैयार हूँ। 65 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, सियालकोट सेक्टर, अरे हमारे को अगर 7 दिन और मिल जाते, दुनिया तो बोलती है 15 दिन होना चाहिए लड़ाई का, अगर 7 दिन और मिल जाते आज पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होता था। हम सियालकोट पर रात को 12 बजे, रात को 5 बजे हमला करने वाले थे, लेकिन रात को 12 बजे सीज पैर हो गया, युवानो आ गया झंडा लेके, और ऊपर से हमारा कमांडेंट बोला अभी सब कैंसिल करना पड़ेगा, हम मजबूर हैं। हम क्या करें, अगर एक दिन भी और मिल जाता, आज सियालकोट हमारे अंडर होता था, अगर 7 दिन भी लड़ाई और हो जाती, वो तो मालूम नहीं किसकी मेहरबानी से कैसे उन्होंने बंद कर दिया। वो बंद किया, आज भी हमें थोड़ा दुख है कि उस दिन बंद नहीं होता तो हमेशा के लिए ये झगड़ा खत्म हो जाता। साहब एक बात बताइए, आप 1971 का आपको क्या याद है, जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, जब पाकिस्तान को खदेड़ा था हमने, उसकी क्या याद है आप? जी 71 में तो हमारी आर्मी ने जैसा कमाल किया शायद पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे योद्धाओं ने, हमारी फौज ने 1 लाख आदमी का कैद करना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक बहादुरी की बात है। 1 लाख आदमी कैद करना हंसी खेल नहीं होता। वो अगर चाहते, वो तो गिदड़ थे जो डर गए, वो चाहते तो 3 महीने तक लड़ाई कर सकते थे, उनके पास इतने हथियार और अम्युनिशन थे। इंडिया का जनरल JS अरोड़ा सरदार जी थे, और पाकिस्तान का जनरल AK न्याजी था, जो कि दोनों ऐसे बोलते हैं, ये मिसाल है या पक्की बात है, सन 47 से पहले जब छोटे बच्चे थे तो एक ही साथ पढ़ते थे। AK न्याजी ने बोला अरे अरोड़ा तो यार, जब मेरे को कैदी करना था तो अरेस्ट ही करना था तो पहले क्यों नहीं बताया? बोलो जब तू नाजी साहब बदमाशियां नहीं करता था, अभी तूने बदमाशी शुरू किया, इसलिए हमने तुम्हारे को कैद कर लिया। साहब एक बात बताइए, जो हमने इतने युद्धबंदी करे, 92-93 हजार लोग कहते हैं, लाख से थोड़ा सा कम, जो हमने युद्धबंदी करे, हमने उनके साथ मानवता का बर्ताव करा कि नहीं करा? करा, ऐसा बर्ताव तो कोई भी नहीं कर सकता। हमारे को ऊपर से हुक्म मिला, अपना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था मानिक शाह साहब ने बोला था कोई उनके साथ अनडिसिप्लिन काम नहीं करेगा, अनडिसिप्लिन बातें नहीं करेंगे, उनको प्यार दे, वो जहाँ तक वो है, इंसानियत का फर्ज होता है, और हमारा हिंदुस्तान का फर्ज तो है शांति चाहते हैं हम, हर दुनिया से शांति चाहते हैं, हम शांत हैं तो दूसरों को भी हम चाहते हैं कि तुम शांत रहो। मेरे को भेजो, मैं तैयार हूँ। आप बोलेंगे ये लोग क्या करेंगे युद्ध में, अरे हम क्या नहीं करेंगे, दुश्मन का बम अपने सीने में ओटेंगे, धरती माँ के कलेजे पर नहीं गिरने देंगे। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। युद्ध भूमि में दुश्मन से जब हम लड़ा करते थे, अरे तूफानों को मोड़ दिया करते थे। युद्ध भूमि में दुश्मन से जब हम लड़ा करते थे, तूफानों को मोड़ दिया करते थे। अभी जितना बॉर्डर पर मारते हैं उतना तो हम रोड पे छोड़ दिया करते थे। शाबाश साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। A legend who was injured in the 1971 war, and since then, so many years, he's been fighting it out. I'm about to meet him, matter of great pride and privilege, once again. Welcome to Patriot. मैं आपको बताता हूँ इनको कोच साहब क्यों बोलते हैं, ये आपने देखा भी होगा बास्केटबॉल कोर्ट में यही थे. He is the national coach of the paraplegic basketball team, and he's also running a special workshop here. We welcome you to Patriot. आइए आपके साथ बात करते हैं. तो कोच साहब बताइए, ये 1971 के बाद आप यहाँ पर हैं? या 74 से मैं इधर ही हूँ. आप 1974 से यहाँ पे हैं? या. अच्छा, ये जो वर्कशॉप है जिसमें हम अभी जाने वाले हैं, ये वर्कशॉप किस चीज़ की वर्कशॉप है, जरा इसके बारे में कुछ बताइए आप. ये तो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर्स अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना. हाँ जी. ये एक बड़ा कंपनी है अम्फिनॉल. ओके. अम्फिनॉल कंपनी ने यहाँ हमारे जवान लोगों के लिए यहाँ काम करने के लिए, असेंबली करने के लिए कितना वेराइटीज ऑफ कनेक्टर्स, कोई हिसाब नहीं है. ऐसे कनेक्टर्स का पूरा का यहाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्होंने दिया. हमारा जवान लोग यहाँ काम करता है. इस काम के ऊपर किसी ने भी उंगली उठाने के लिए हम मौका नहीं दिया अभी तक. बिल्कुल. तो क्वालिटी क्या
दौरान। एक बात बताइए कोच साहब, मैंने सुना है कि जब से ये 1982 से शायद शुरू हुआ है वर्कशॉप, या ये वर्कशॉप शुरू होगा 1982 से। 82 से, या। और आज तक किसी भी कस्टमर ने क्वालिटी के ऊपर उंगली नहीं उठाई आज तक? ना, कोई पार्ट वापस नहीं आया? नहीं, कोई हमारा असेंबली के ऊपर हाँ। अभी तक किसी ने भी उंगली उठाया नहीं। एक बार भी 1982 के बाद। You know, viewers, we speak about Six Sigma, all the corporates, you know. That is supposed to be the gold standard for quality everywhere in the world. I would like all the coaches, the Six Sigma coaches, the green belts and the black belts. You know, it's a very simple facility. There is no high-fangled equipment. Almost everything is done by hand or by simple equipment here. Since 1982, I don't know how many million parts manufactured, and no customer has come back with even one single fault. No part has been returned as far as their work is concerned. This is unique and gives me a lot of pride because I am from this family. This is the family of soldiers. There is a workshop, and in this workshop, they don't just make components, they make magic. I'm first going to speak to my friend here. गुड इवनिंग सर। Hello, good evening. कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपका नाम? मेरा नाम श्यामल राजा है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आंध्र प्रदेश का हूँ सर। आंध्र प्रदेश। आपकी यूनिट कौन सी है? मैं एमईजी का हूँ, मद्रास MEG? इंजीनियरिंग का। मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप। सर, 11 इंजीनियर रेजिमेंट में सर्विस कर रहा था। अच्छा, तो आपका ये इंजरी कैसे हुआ ये? सर ये इंजरी जो 1991 में हाँ, हमारा जो रिपब्लिक डे परेड होता है दिल्ली में, करेक्ट। जो हम लोग आर्म वर्क होता है, जो हम लोग को काम करना पड़ता है वहाँ पे, हाँ। आयरन गार्ड्स का हम लोग क्लैंप वगैरह लगे गेट बना था। हाँ। वो खड़े करते समय क्या होता है, स्लिप होकर ऊपर गिर गया। अच्छा अच्छा तब से मेरा स्पाइनल कार्ड इंजरी हुआ था। अच्छा, फिर वो दिल्ली में 9 दिन बेस हॉस्पिटल में एडमिट किया था। ठीक है। वहाँ से जो पुणे यहाँ पे है जो मिलिट्री हॉस्पिटल में ओके। स्पाइनल कार्ड इंजरी सेंटर है, अच्छा। वहाँ पे हम लोगों को ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे भेजा था। आने के बाद जो लाइफ कैसा जीना करके हमारा जो सीनियर्स है उन लोगों ने उसको एंजॉय कर रहा था, वो लाइफ को भी, जो व्हीलचेयर लाइफ को भी। फिर हम लोगों ने उनको देख के, जैसे फेरेरा सर वगैरह इन लोगों ने बहुत मतलब ये अच्छा लाइफ जी रहा था। फिर देख के हम लोग भी गेम वगैरह खेलना, गेम में पार्टिसिपेट करना वगैरह ये किया। एक बात बताइए, मैंने भी आपसे हाथ मिलाया, सर ये आपके शोल्डर वगैरह, आप गेम कौन सा खेलते हैं? सर गेम बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं, हाँ। जो टीम गेम है। हाँ। जो इंडिविजुअल गेम होता है जो डिस्कस थ्रो, एथलेटिक्स वगैरह ये खेलते हैं। आप डिस्कस थ्रो करते हैं? Yes, sir. हम आपके साथ आपके स्पोर्ट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। ये क्या है, ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे? व्हाट इज दिस? सर ये वर्कशॉप हमारा जो हम फिजिकली वो कैसे हाँ। गेम वगैरह खेलते हैं, मेंटली हम लोगों ने अपसेट होता है, इसके लिए वर्कशॉप यहाँ पे रख के सभी व्हीलचेयर वाला एक जगह पे रख के हम लोगों को काम वगैरह करवाते हैं, क्योंकि मेंटल हम लोगों ने एक फोकस करने का। ये रेलवे सिग्नल्स को वगैरह इस्तेमाल में आता है, ये पैनल में वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये हम लोगों ने, मैं एक्चुअली इसका गेट पिन वगैरह कर रहे सर। हाँ। इस तरीके से हम लोगों ने एक गेट पिन वगैरह लगाया। अच्छा, ये आपने गेट पेन बनाई है? ठीक है। अब आप हमें बताइए, ये आपके स्पोर्ट्स का आपको यहाँ पे, पहले जब आप MEG में थे, यस सर। MEG में भी स्पोर्ट्स खेलते थे? सर स्पोर्ट्स कभी खेलता नहीं था, देखते बहुत एंजॉय करता था, लेकिन अच्छा। अभी यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने जो हमारे सीनियर्स को देख हम लोगों को बहुत इंटरेस्टेड आ गए, हाँ। हम भी खेलना है। हाँ। फिर खेलते खेलते मैं नेशनल लेवल पे 100 से ज़्यादा मेडल लिया हूँ। आपने 100 से ज़्यादा मेडल्स लिए हैं? यस सर, यस, एथलेटिक्स में लिया हूँ। आपसे श्यामल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और लग रहा है वो डिस्कस थ्रो वाले का हाथ है। क्या बना रहे हैं आप? ये सर ये 164 ऑडियो कनेक्टर है। 164 ऑडियो कनेक्टर। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम सर एक्स राइफलमैन नैना सिंह थापा, 15 GR। एक्स राइफलमैन नैना सिंह थापा। जी सर। 15 गोरखा राइफल्स। जी सर, जी सर। अच्छा, और ये पार्ट किसके लिए बना रहे हैं आप? ये सर ये USA में जाता है, नासा के लिए। ये नासा के लिए बना रहे हो? हाँ जी, सैटेलाइट में जाता है हाँ जो? जी, हाँ जी। और Viewers, this rifleman from Gorkha Rifles, 15 Gorkha Rifles, is making these parts, these connectors, which will be used in a NASA space satellite. Now, obviously, these are small parts, and obviously, there are millions of parts in a satellite. It will give all Indians a special feeling of pride that some part of a NASA satellite, a very small part of a NASA satellite, is made by a soldier of the Indian Army. आपसे बात करके दोस्त बहुत अच्छा लगा, जी सर। और बहुत अच्छा दिल में लग रहा है, बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है दिल में कि आप इतना हाई क्वालिटी का काम हमारे देश के लिए करते हैं, जिस पे इंडियन आर्मी का ठप्पा लगा हुआ जी है। सर। क्वालिटी, टॉप क्लास क्वालिटी, है ना? ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बता रहा हूँ सर।
there is a lot of precise manufacturing that goes on here inside these three rooms, these three small rooms. And this is a radio frequency high voltage FEM connector. Now, this is currently not in production, but very often it is, and they hope to start producing it again. Interestingly, these people who were earlier serving in either the infantry or the artillery or engineering, arms and services of the Indian Army, the engineers, they're making this part. And this part, viewers, is used by ISRO. So whenever India sends up a satellite, there are thousands upon thousands of parts which are used in a satellite. But the next time ISRO sends up a rocket, don't forget, there is a soldier here who made this small part and who made that satellite possible. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू सर। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं करा? नहीं बिल्कुल नहीं सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फुलबो रेंडॉल, सिपाही फुलबो रेंडॉल। आप कौन सी यूनिट से हैं? मैं 5 विकास SFF। 5 विकास स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, तगड़ी वाली फौज। हाँ जी सर। पैरा ट्रूपर, स्पेशल फोर्सेस। स्पेशल फोर्सेस। अच्छा। तो आप बताइए, आप स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के साथ थे, 5 विकास के साथ, तो कहाँ आपकी पोस्टिंग रही, क्या देखा आपने? नॉर्मली तो JNK में रहा ज़्यादातर। अच्छा, ऑपरेशन करे JNK में? हाँ जी, मैं मैघदूत में था, सियाचिन में। सियाचिन में भी थे आप? ऑप रक्षा कॉप मेघदूत? हाँ, अच्छा, मैघदूत में था। मेघदूत में, ग्लेशियर में सर। अच्छा, ग्लेशियर की कुछ यादें? ग्लेशियर जब हम बहुत माइनस टेम्परेचर पर याद ही है, और बेस कैम्प में हम जब हमारे यूनिट थे तो वहाँ इतना टेम्परेचर हाई मतलब माइनस रहता है कि वहाँ तो खेलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो खेलना वहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम सब ये जो बड़े कॉफ फ्लैक्स फुटबॉल बूट्स तो मिलता नहीं, जो हमारे स्नो बूट्स से ही हम फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल खेल रहे थे सचिन पे? बेस कैम्प में। बेस कैम्प पे? तो वहाँ कभी ब्रिगेड कमांडर से रिपोर्ट आएगा, अरे ये लोग कैसे खेल रहे हो, बीमार पड़ेगा ये है। तो ब्रिगेड कमांडर साहब ने बोल दिया? हाँ सही। तो हमारे CO साहब ने बोला जब तक ये खेलेगा नहीं तब बीमार पड़ेगा, तो खेलते रहते क्योंकि रेन सहन ऐसा ही है। तो आप बताइए, आपको सियाचिन में चोट किस तरीके से लगी? चोट एक्चुअली सब एक 41 GR का एक हवलदार जी था, उन्हें हैपो हो गया था। हैपो हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हो गया? यस जी। उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रहे थे, तो उन्हें हमारे बेस कैम्प से ऑर्डर आया कि जल्दी इन्हें मतलब विदिन हाफ आवर के अंदर उन्हें नीचे ले आइए, ताकि हेली से वो उन्हें बेस कैम्प मतलब हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो हम काफ़ी आगे फॉरवर्ड पोस्ट में था। अच्छा। तो मैं कम से कम दोपहर को हमने उनको विड्रॉल करना शुरू कर दिया। नो मूवमेंट था, धीरे लेके आ रहा था। तब ट्रैवल्स के अंदर हम गया 90 मीटर्स ट्रैवल्स के अंदर। ट्रैवल्स के अंदर गए? यस, तीनों चले गए। जो पेशेंट था वो भी, मैं और मेरे साथ जो था। ओके। एक को तो कुछ नहीं हुआ, एक तो गुजर गया। जो पेशेंट था, जो हवलदार जी था GR का, वो तो गुजर गया। और मैं 1.5 आवर्स बाद में मुझे रेस्क्यू करके निकाला मेरे दोस्त लोग ने, 5 विकास के लड़के लोग ने, मेरे यूनिट के लड़के लोग। मैं चाहता हूँ कि एक हमारे दर्शकों के लिए ये गाना सुना। मेरा बड़ा फेवरेट गाना है ये मासूम फिल्म का गाना है, गुलजार साहब का लिखा हुआ ना, बहुत ही शानदार गाना है। आप जरा एक बार गाइए ना हमारे लिए। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं।